बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैयार है, तो वहीं दुश्मनों से निपटने के लिए भारतीय फौज तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीडीएस अनिल चौहान ने युद्ध का उद्घोष कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय फौज को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। दुश्मनों को क्लियर कट मैसेज देते हुए उन्होंने कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन शांतिवादी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में दुश्मनों पर समंदर से प्रहार होगा, इसलिए भारतीय नौसेना को आज डबल पावर भी मिलेगी। आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी का नाम सुनते ही पाकिस्तान क्यों कांप उठता है, क्यों उसकी रूह थरथराने लगती है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के पराक्रम का उद्घोष। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, भारत की तैयारी शुरू। इफ यू वांट पीस, प्रिपेयर फॉर वॉर। भारतीय नौसेना को मिला समंदर में डबल पावर। Gautam Buddha, Mahavir Jain and Mahatma Gandhi, all champions of non-violence. We also have ancient scriptures about war. Mahabharata, the longest running epic ever written in the world, was about almost like a global war. It's about a just and righteous war. India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. And over here, I like to quote a Latin quote which goes like this: "Si vis pacem para bellium," which translates, if you want peace, prepare for war. This is also aptly captured in the poem of Ramdhari Singh Dinkar, that's Shakti and Shaba, in which he says that क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 से एकदम अलग होगा। इस बार पाकिस्तान पर प्रहार समंदर से होगा। समंदर में नौसेना को डबल पावर मिला है। भारतीय नौसेना के बेड़े को 2 नए स्टेल्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को शामिल किया गया है, जो भारत के स्वदेशी क्षमता और औद्योगिक तकनीक के विकास का प्रतीक है। Operation Sindoor was a modern conflict from which we learned a number of lessons, and most of them are under implementation. Some have been implemented. The operation is still on. We are not here to discuss Operation Sindoor. We are here to discuss something beyond Operation Sindoor. First is, I think there is an increased propensity amongst nations and governments to use force actually. And this is happening because political objectives today can be achieved by short duration conflicts. The second thing is precision strikes
can cause they create very little collateral damage, and hence the cost of war for nations is less. So hence there is a propensity to use force. In the past, matrices of victory probably were defined by losses inflicted in terms of men and equipment on the adversary. It could be defined in terms of prisoners of war captured. In 1971 we had these 95,000 Pakistanis captured. But in today's warfare, probably the new matrices of warfare or victory are say, speed and tempo of operations. That could be one. Effects of long-range precision strikes, including PSDA. I think that their impact is getting more and more important. The impact is physical as well as psychological. And the third important matrix of victory, which I think is display of sophistication and superiority. आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी अत्याधुनिक युद्धपोत हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 सिस्टम से लैस हैं। इसके साथ ही भारत के पास अब 3 फ्रिगेट्स स्क्वाड्रन तैयार हो गए हैं। ये फ्रिगेट्स ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई हैं, यानी एक गहरे समुद्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने में सक्षम हैं। That a professional soldier must also be a scholar warrior. We know that combination of military strategy and warrior is essential to win, and the foremost and the best example of this is Mahabharata actually and Gita. We all are all aware that Arjuna was the greatest warrior of all times actually. His battle skills were unmatched and legendary. Yet he needed a Krishna to guide him towards victory. Krishna, he was the embodiment of worldly knowledge and wisdom. He is a master of statecraft and strategy, and both of them combined together, that's what actually Mahabharata was won. Similarly, we had Chandragupta, who needed the wisdom of Chanakya. And in western side, if you look, even Alexander needed the wisdom of Aristotle. Kautilya or Chanakya speaks about Shakti, Utsaha and Yukti. That is strength, motivation and strategy as essentials for victory. Technology today actually enhances all these three, Shakti, Utsaha as well as Yukti. आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी का डिजाइन इतना खास है कि दुश्मन की रेडार भी इन्हें नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए इसे स्टेल्थ फ्रिगेट कहा जाता है। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। ये नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। तो वहीं आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है, जो इस प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। दोनों जहाजों में करीब 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को दर्शाता है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत और बढ़ गई है। अगर आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की खासियत की बात करें तो दोनों का वजन करीब 6,670 टन है। दोनों की लंबाई करीब 149 मीटर यानी लगभग 15 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के बराबर। दोनों 30 नॉट की रफ्तार से चलने में सक्षम है। एक बार ईंधन भरने पर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करती है। We have always spoken about Shastra and Shastra in the same breath. They're never inseparable. They were actually the two blades of the same sword. Students in ancient times went to Gurukuls, a precursor to maybe modern-day Sainik schools, and they were exposed to combat skills as well as strategy and statecraft. ये युद्धपोत नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता से लैस हैं, जो रियल टाइम डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है। साथ ही हेलीकॉप्टर ले जाने की सुविधा भी है, जो लंबी दूरी तक पनडुब्बी रोधी और निगरानी मिशनों में मदद करती है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। 450 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल समुद्र और जमीन पर लक्ष्य भेद सकती है। साथ ही बराक 8 से भी लैस है, जो सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइल है, जो हवाई खतरों जैसे विमानों, ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स को न्यूट्रलाइज करती है। इसके अलावा पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो भी तैनात है।
नजदीक के खतरों से निपटने के लिए 76 mm नेवल गन और 30 mm और 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस हैं। मिसाइलों और टॉर्पीडो से बचाव के लिए इस युद्धपोत को कवच चाफ, रॉकेट लॉन्चर और मारीच टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम से लैस किया गया है।